How are you? Fine. I think you are fine and your days are going smoothly and smoothly. On last lecture, I have told about the chapter first of your history, that is the rise of nationalism in the Europe. Now I will teach the chapter number first of your political science. That chapter name is power sharing. That chapter name is power sharing. According to the power sharing, by name it is clear that the something telling about the sharing something कैसे बंटवारा किया जाता है. तो इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हाउ द पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू द अनदर गवर्नमेंट, हाउ द पावर इज ट्रांसफर्ड, why is power is transferred, why is power is shared, why is power is needed to be shared. Because if we the one person cannot handle the everything, because India is a big country. According to example, our India is big country, and in the big country the one person cannot handle the whole India. That's why our India is divided into the central government and the various types of various state governments. So state government, what is state governments do? State governments do look after their particular states, and the state central government look all over the 29 states. An example of the power sharing. In this chapter, we will study that. We will talk about the which are with the government. What are the government power and how did power has been transferred. So, according to the chapter, we will study about the topic two. Three topics are to be covered. That topic is the story of the Belgium, story of the Sri Lanka, and the forms of the power sharing. Firstly, we will study about the story of the Belgium. In first lecture, and I will tell you the story of the Belgium. The whole chapter I will tell in the three lectures only. And the first is the story of the Belgium. We will talk about the story of the Belgium. After listening the lecture, you will go to your textbook and go through it. And any problem you can ask me in the comment box. Okay. Story of the Belgium. What is the Belgium? Belgium is a small country in the Europe. Belgium is the small country in the Europe, and you know that this is that much small country, in the that much small country in the Europe. If we compare to the Haryana state of India, it is smaller than that. You know that it is smaller than that. That much small it is, and you know that in the Belgium, Dutch is speaking Flemish 59%, German is speaking is 1%, and French is speaking in the Wallonia is 40%. Means the Dutch is speaking in Flemish the 59%, and the German is speaking is 1%, and the French is speaking in Wallonia in the is the 40%. And but in the capital of the Belgium, that is the Brussels. Capital of Belgium is the Brussels. How much condition is that? The Dutch speaking is 20%, and the French speaking is the 80%. 80% क्या है फ्रेंच स्पीकिंग है ब्रुसेल्स में, और डच स्पीकिंग आपके 20% है. बट एंड वन थिंग मोर दैट द बेल्जियम नेशन मेड ए नेशन अकॉर्डिंग टू दैट द पीपुल लिव इन द वन स्टेट. बेल्जियम ने क्या किया कि एक नेशन बनाया जिससे कि लोग क्या कर सके कि एक साथ एक नेशन स्टेट बना कर रह सके. इसके लिए बेल्जियम के लीडर्स ने क्या किया कि बेल्जियम को एक नेशन स्टेट बना दिया जाए, सभी लोग एक साथ मिलकर रहें. तो व्हाट द बेल्जियम्स लीडर्स डिड, क्या उन्होंने किया? तो बेल्जियम leaders did. First is the some special laws requires the support of the majority of the member from each linguistic group. सभी भाषाई ग्रुप से, सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप से क्या किया गया? एक स्पेशल लॉ रिक्वायर किया गया, एक स्पेशल लॉ पारित किया गया. टू किस लिए? टू सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी सभी भाषाई ग्रुप के जो भी भाषा, लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब भाषा के आधार पर ग्रुप को बांटना, और उस भाषा के आधार पर ग्रुप को बांटने के बाद उसमें सभी को क्या किया गया कि स्पेशल लॉ दिया गया, एक लॉ पारित किया गया और सभी को सपोर्ट किया गया. और क्या किया गया? दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजन यूनिलेटरली. दस नो सिंगल, कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी, कोई भी एक सिंगल जो समुदाय है अपना एक अलग डिसीजन नहीं ले सकता है. सभी है वो डिसीजन, कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकता है. और क्या था कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वी आर गिवन टू द, बहुत सारे पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे वो किसको दे दिए गए?
वो दे दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए। वो जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर किसको, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे देने के बाद क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर कम हो गई और जो वर्क है वो स्मूथली हो सके। क्यों? क्योंकि नेशन स्टेट बनाना था, एक रूपता लानी थी, इसलिए। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द, और ये एक बात और थी, जो स्टेट गवर्नमेंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं था, उसके अधीनस्थ नहीं था, यानी सबऑर्डिनेट मीन्स उसके अधीन काम करने वाला नहीं था। उसके पास पावर दे दी गई थी किसको, स्टेट गवर्नमेंट की, कि दे कैन डू देयर वर्क विद देयर चॉइस, विद देयर लॉज, एंड देयर इज नो special order by the central government. That type of power is given to the state government. And the Brussels has a separate government in which the both communities has equal representation. और ब्रुसेल्स के पास एक सेपरेट, एक अलग से गवर्नमेंट स्थापित कर दी गई कि इसमें क्या हुआ, इन विच द बोथ द कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज जो है, दोनों डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी, दोनों को क्या किया गया कि पावर दे दी गई कि दे कैन एबल टू प्रेजेंट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। उनको पावर दे दी गई ब्रुसेल्स को। और क्या था कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने क्या किया, हैड एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने क्या किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उनको पावर मिल गई कि वो भी अपने को प्रदर्शित कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में, वो भी डच स्पीकिंग भी अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अपने को वह प्रदर्शित कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने पावर्स को वह क्या कर सकते हैं, पावर को वह दिखा सकते हैं। और कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज द पावर, कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्पेशल कम्युनिटी, यानी स्पेशल एक समुदाय को दिखाया जाता है। एक समुदाय होता है जिसके जरिए क्या किया जाता है, एक समुदाय होता है जिसके जरिए क्या होता है कि वह अपने कॉमन कल्चर को, लैंग्वेज को और एजुकेशन को दिखा सकते हैं, एजुकेशन को दिखा सकते हैं, कल्चर को दिखा सकते हैं और लैंग्वेज को दिखा सकते हैं। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट स्थापित की गई। और क्या किया गया, इससे यह प्रतीत होता है, जितने भी लीडर्स के द्वारा यह नियम बनाया गया था, इससे यह प्रतीत होता है कि बेल्जियम लीडर्स रियलाइज करने लगे कि यूनिटी इज पॉसिबल। कोई भी यूनिटी, कोई भी एकता तभी पॉसिबल हो सकती है, तभी बन सकती है, बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। जब किसी के फीलिंग्स को, भावनाओं को हम रिस्पेक्ट करेंगे, उनके आदर्श को हम मानेंगे, तभी कोई भी क्या होता है, यूनिटी पॉसिबल है। ये सब किसके द्वारा किया गया, बेल्जियम लीडर्स के द्वारा किया गया, ताकि क्या हो सके, एक नेशन स्टेट बनाया जा सके। तो बच्चों ये था आपका स्टोरी ऑफ बेल्जियम के बारे में हमने बताया। जो भी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल discuss about that topic. Now in the next lecture I will tell about the story of the Sri Lanka. So read this and study this and read your book and listen my lecture, then it will be confirmed to you. Okay, thank you.